Okay, lot of acts are there. According to that, you would have to do the business. Okay, international business. Let's start. What is international business? See, let us read the introduction. International business refer to all business activities that take place between two or more countries. Okay, it include exchange of goods, services, technology, capital, knowledge across national border. Okay, international business means the activities that going on between the two countries related to business, such as capital, goods, services, technology, etc. to national borders. Just say, as you know, that we have a very good bonds before Yunus Khan was the president of Bangladesh, but before that, when Sheikh Hasina used to be the president of Bangladesh, we have a very good relationship with the Bangladesh. It's an international border. So Bangladesh is very much famous for Hilsa Machli. So we export Hilsa from Bangladesh. Okay. And also Bangladesh export onion, potatoes, many more spices from India. Okay. So whenever there is an exchange between two countries, that all international business. Now this international business not only restricted to only goods and services, but also we can exchange the technologies also. For example, you have already know that Russia is going to give us a technologies, drone technologies, or more than that, missile technologies we will going to get from Russia. Vice versa, we will also going to share some of our hypersonic missile technologies with Russia. This is called technological part. Not only this, we also have a very good relationship between just business with Americas. Americas used to give us some important technologies of their companies and all, and we are also sharing the same with the America. This exchange of goods, services, technologies across the border is called international business. This is called international business. समझ में आया यहाँ तक? Now, हाँ सर. international business, it plays a very major role in modern global economy. Yes, companies expand beyond domestic market, increase profit, reach new customers worldwide. Countries also benefit through foreign trade, employment generations, better quality products, and economic growth. Now, this international business across the border not only restricted to any specific uh, restricted means what is called ideology. It is not restricted to only exchange of goods and services and technologies. Not only that, but to other also, such as some of our, you know, that in many countries across, we have the Indians are there who are working there, staying there on visa and working for that particular country. So what does it mean? Some of our international clients, they are coming to India for their work, to understand the cultures, to work, to earn the monetary gain and all. So what does it mean? It simply means that it strengthened the global economic. It strengthened the global economy. Okay, whenever any two countries do international business with any other countries, okay, why they used to do this? To make or to strengthen their own countries. Okay, and not only that, they also try to strengthen the global economy. Suppose, for example, India is doing international business with many countries: France, Germany, Russia, except Pakistan. Yes, we are also doing uh, before this all these activities on all terrorist activities on all. We also do a trade and business with Pakistan: wheat, onions, potatoes, many more things we are used to do with Pakistan. But now this critical situation, we stopped doing business internationally with Pakistan. We are doing business with China. We are doing business with Japan. Many maximum countries we have an international collaborations. We have an international business across the border.
So what does it mean? It means just to strengthen the global economy, and not only that, just to strengthen our countries also, just to strengthen our economic conditions also. Okay, whenever our what you can say, our people cross the border and go to other countries for the work internationally, what does it mean? They are strengthening our countries also, and they are strengthening their cultures also. Because whenever they are earning in dollars, rupees, dinars, they try to exchange their money in rupees. So whenever they exchange the money in rupees, they had to pay tax to the government. So from that, government is also collecting huge collections of taxes from the international clients and all, international people or international workers, laborers. Many clients are there who are doing online business. So actually, what we are doing, actually, this culture make any country strong, okay, economically. This is called international business. Now there is another thing is that with the growth of globalization, international business has become an essential part of every nation's development. Today, companies of all sizes participate in global trade through import, export, foreign investment, and international partnership. So now, not only it restricted to some of distinct countries, some of the distinct companies, not only restricted to some of the distinct what you can say industries. Now every, either it is small scale industries or medium scale industries or any large scale industries, everybody, they are trying their level best to do business globally. Okay, means nationwide, Asian wise. Okay, some of the few small scale industries, they want to do the business with, they are doing business with Sri Lanka, they are doing business with Nepal, they are doing businesses with what you can say, Bangladesh, Myanmar, Mizoram. Okay, so whatever. Recently, there is a news. I don't know whether you have read it or not. In Prabhat Khabar, there is a news that a student from Galudi, their specific that region, Rakhabines, Galudi, in between that two station, they have an international collaboration. He has created an AI assignment. He has created an AI assignment and he sold in South America or somewhere else like that, Asian, American countries. He has received $5 million contract for that particular man. कोई गालूडी का ही लड़का है वो. He is doing such type of business. तो देखो गालूडी का लड़का नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस कर रहा है. उसका बिजनेस वो स्टार्टअप स्टार्ट किया था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया. अब ये जो बना रहा है वो खरीद रहा है. कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गालूडी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ठीक है, $5 million मीन्स कैन यू इमेजिन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ही इज डूइंग फॉर दैट. सिंपल 5 जन मिलकर वो स्टार्टअप किया था. इतना अच्छा प्रोग्राम डिजाइनिंग किया था कि उसको रिकॉग्निशन मिल गया, उसको स्टार्टअप, उसको इन्वेस्टमेंट मिल गया. अब वो पैसा कमा रहा है. आज का ही न्यूज है, देख लेना. सो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. मैम नेक्स्ट स्लाइड. Now, features of international business with example. What are the essential features of international business? First, involve more than one country. This one is the most important feature of for doing international business. Involve more than one countries, such as international business take place between two or more countries. Okay, it connects buyers and sellers from different nations. Example, India export tea to the United Kingdom. Okay, this is that example. It means that there is a lot of involvement are there. You cannot restrict India, or India cannot restrict itself to any particular specific country. They shouldn't depend on one country. Okay, they should be dependent on many more countries. For example, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजीज बोलिए या कोई भी इक्विपमेंट्स बोलिए, रशिया से हमें मिल रहा है, फिर भी इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, वहां से भी कांटेक्ट कर रहा है. ओके, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ कोरिया, but I'm talking about South Korea. वहां से भी टेक्नोलॉजीज, lot of AI technologies, lot of
मिसाइल टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों? एक ही पे अगर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे, अगर कभी कुछ हुआ तो फिर हमारा सारा सप्लाई कनेक्शन बंद हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली तुमको पता है कि तेल की किल्लतें, गैस की किल्लतें रिसेंटली कुछ बढ़ गया था। चलो फिलहाल तेल की किल्लतें तो कम हो गई, हुआ नहीं था हमारे झारखंड में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन गैस सिलेंडर का प्रभाव जबरदस्त पड़ा, प्रभाव पड़ा। अभी तो रिसेंटली 21 डेज के बिफोर यू कैनॉट बुक एनी सिलेंडर। क्यों? हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स आते थे, वो हॉर्मुज जो चैनल है वो क्रॉस करके आते थे। अब हॉर्मुज चैनल का जो की था, मेन जो चाबी था, वो ईरान के पास था। अब ईरान जो भी हॉर्मुज चैनल के वहां से गुजरता था, उसे ड्रोन, ये उसे मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देते थे। इट इज ओनली द गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, दैट्स व्हाई they are not able to destroy the tanks or the anything else, or the oil tanks or the gas, anything else. And they have ordered, they have requested our Prime Minister Modi ji that whenever your tanks, oil tanks try to cross Hormuz, just placed an Indian flag on the ship. That's all. We will not going to harm your ship. This is the thing. So फिर भी दिक्कतें हो रहा है, अमेरिका के प्रेशर आ रहा है, चाइना प्रेशराइज हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज को, रशिया प्रेशराइज कर रहा है, और भी एक कंट्री है यूक्रेन प्रेशराइज कर रहा है, लॉट ऑफ कंट्रीज आर प्रेशराइज कर, जिसकी वजह से ईरान चाहते हुए भी हमें ऑयल टैंक्स दे नहीं पा रहा है। ओके, इतना सारा प्रेशर होने के बाद है, इसीलिए हमारे देश की एक हमारे देश के जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जी, उनका ये कहना है, उनका ये तत्व है कि हम कहीं किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वी विल नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन कंट्रीज और ओनली वन चैनल। अभी रिसेंटली रशिया रिलीज कर रहा है ऑयल, लॉट ऑफ अदर रिफाइनरीज आर देयर जहां से बातचीत हो रहा है, दुबई की और भी रिफाइनरीज से बातचीत हो रहा है जहां से वो हमें शुद्ध प्रयुक्त तेल हमें देंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई कंट्रीज एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो कभी ना कभी ये मुश्किल हालातें आती है। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस का ये मोटो है दैट इन्वॉल्व मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा के साथ आप बिजनेस कीजिए, पहला। दूसरा है यूजेस फॉरेन करेंसीज। नाउ पेमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस आर मेड इन डिफरेंट करेंसीज सच एज डॉलर, euros, yen, dinar, etc. For example, as Indian company importing machinery from Germany pay in euro, ठीक है, उनको यूरो में पे करना पड़ता है। ठीक है, हम जर्मनी से मशीनरीज लेते हैं, जो भी यहाँ पर मशीनरीज देख रहे हो, चाहे वो जेसीबी ले लो, चाहे वो एक्सकैवेशन मशीनरीज देख लो, जितने भी इक्विपमेंट्स है, हाईली ड्रिल्ड इक्विपमेंट्स, वो जर्मनी मेड है। जर्मनी मशीन बनाने के लिए इंजीनियरिंग का हब कहा जाता है जर्मनी को, इसलिए वहां मशीनरीज जबरदस्त मिलते हैं, एकदम टेरिफिक, माइंड ब्लोइंग। ये जो हमारे जितने भी आटा चक्की देखते हो ना, ये सब जर्मन मेड आटा चक्की है। अभी तो फिलहाल इंडिया में हो रहा है, लेकिन पहले ये जर्मनी से ही आते थे, एक्सपोर्ट होते थे। अभी तो इंडियन मेड हो रहा है, बट बिफोर दैट इट यूज्ड टू बी कम फ्रॉम जर्मनी। So whenever our Indian government tries to purchase any machinery equipments from Germany, they had to pay in euros. ओके, अब यूरो में पे करने के लिए इंडियन करेंसीज बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि एक यूरो इक्वल टू समथिंग रुपीज होता है, तो इसलिए ज्यादा पे करना पड़ता है। ये जितने भी आप हॉस्पिटल्स में जितने भी मशीनरीज इक्विपमेंट देखते हो, ऑल आर जर्मन मेड, इंडियन मेड तो है ही नहीं। आपको इंडियन मेड कुछ नहीं मिलेगा, सब जर्मन मेड है। तो मशीनरीज बनाने में जर्मनी का कोई हाथ नहीं है, मतलब उनका कोई दूसरा हाथ ये नहीं कर सकता है, इतना उनका जबरदस्त कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ फॉरेन करेंसीज हो गया। नेक्स्ट मैम, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इंटरनेशनल बिजनेस इज यूजुअली कंडक्टेड अ लार्ज स्केल बिकॉज goods and services are traded in bulk across countries. Example, Toyota export thousands of cars to different countries every year.
एक और होता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस इज यूजुअली कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज goods and services are the traded in bulk across countries। इंटरनेशनल बिजनेस अगर करना है तो बल्क में कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बल्क में करोगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। जैसे टोयोटा, महिंद्रा, दे ऑल आर डूइंग एक्सपोर्ट्स। ओके, टोयोटा के जितने भी गाड़ीज है, नॉट ओनली इंडिया, दे आर माने एक्सपोर्टिंग टू एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स मोर रिस्क। नाउ while doing international business there are involvement of more risk। रिस्क तो रहेगा भाई, आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो रिस्क तो प्रेशर रहेगा। वहां के कानून, वहां की कानून व्यवस्था, वहां का कल्चर, वहां का रीति रिवाज, वहां का लॉ, वहां का पुलिस, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू पेनिट्रेट टू दैट कंट्रीज फॉर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस हैज हायर रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेस अगर करना चाहते हो तो उसमें हायर रिस्क है। क्यों? ड्यू टू पॉलिटिकल करेंसी फ्लक्चुएशंस। जैसे मैंने कहा था, करेंसी फ्लक्चुएशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे अभी भी कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, lot of Spain, lot of small countries are there, न्यूजीलैंड, जो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनके पास करेंसी का फ्लक्चुएशंस इतना प्रभाव पड़ता है कि वो अगर एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो उनका जो बजट है वो खत्म हो जाएगा, उनका जो बजट है वो खत्म हो जाएगा। स्मॉल कंट्रीज है, नाइजीरिया, केनिया, नायरोबीस, ये सब क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट तो करते नहीं है, या ना इस देश से कोई कुछ एक्सपोर्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करता है। चाहे तेल हो, खाने पीने के सामान हो, एवरीथिंग दे आर बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए अल्जीरिया, नाइजीरिया, नायरोबी, केनिया, स्पेन, ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ओके, ये सब कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज है, इनको बहुत तकलीफ होता है अगर ये एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करे। करेंसी फ्लक्चुएशन जितना ज्यादा होता है इनके लिए तकलीफ होता है, बजट ही इतना छोटा बनता है, क्या करे, क्या खाए ना क्या करे, क्या खाए और क्या ना करे। तो सबसे गरीब देश सोमालिया, आपको पता है कि नहीं? पता नहीं। वहां का ट्रेड मालूम है? ये तन्मय, सोमालिया देश में ट्रेड क्या होता है मालूम है? एंड ओपन है, लीगल है, नॉट इवन ए सिंगल पुलिस गोइंग टू लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट द क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट गोइंग ऑन इन सोमालिया। जानते हो क्या है? एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये दोनों सबसे मेन बिजनेस है सोमालिया का। अगर आप सोमालिया घूमने जाओगे तो आप गवर्नमेंट को बोल के जाइए, सर आप मेरे लिए पैसा खर्चा कीजिए, क्यों मैं वहां जाके टारगेट हो जाऊंगा। कभी सुना है सोमालिया देश घूमने के लिए जा रहा है? एक यूट्यूब वीडियो जो गया था वो बहुत प्रिकॉशस और गाइड के साथ और बहुत सारा परमिशन लेके गया था। यूट्यूब में उसका है, विजिट टू सोमालिया। सबसे गरीब देश, इतना गरीब आप सोच नहीं सकते हो। एक रोटी की कीमत इंडियन में 100 रुपया। सच्चे मैंने क्या बोलूं मैं, सच्चे पॉवर्टी एरिया। अब वो हर एक कुछ इंपोर्ट करता है तो उनके लिए करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत बड़ा होता है। फिर पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारा पॉलिटिकल इश्यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होता है, लीगल बैरियर्स। दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट risky business. International business, you can call it a very risky business. Example, a war or sudden government policy change may stop trade between two countries। अगर एक वॉर होता है किसी दो कंट्री के बीच में तो सडनली सारा कुछ स्टॉप कर दिया जाएगा। समझ में आया तन्मय यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट मैम। नाउ फीचर्स विद इंटरनेशनल बिजनेस विद एग्जांपल। अच्छा, और भी पॉइंट्स है। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस इफ यू वांट टू डू विद अदर कंट्रीज दैट दे आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स।
their governments, their politicals, their what you can say leaders and all. So they have a different law, they have different policies, they have different trade license rules and regulations. So it's a different countries. So whenever there is a good relationship with other countries, then only you can do the business freely. Example, if you take it that Russia, they have a free trade relationship only with India. आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन रशिया एक ऐसा कंट्री है जहां से हम भारत के लिए सारा कुछ ट्रेड्स जो हम करते हैं वो बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी टैक्स, कोई भी, हाँ जो दाम है वो तो देना पड़ेगा, लेकिन कोई जो एक्स्ट्रा टैक्स, उनके लिए कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए वो ओपन है। जब रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए थे, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो पूरा कैबिनेट उठा के लेके आए थे यहाँ पर। आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, पूरा कैबिनेट, अपना छोटा सा कैबिनेट मीटिंग मैंने बोर्ड कैबिनेट मिनिस्टरियल कैबिनेट पूरा उठा के लेके आए थे चार्टर्ड प्लेन में। इंडिया के साथ बिजनेस करना है, बिकॉज इंडिया इज ओनली द कंट्री वेयर यू कैन डू सेवरल टाइप ऑफ बिजनेस, बिकॉज वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है हम अनेकों में एक है। हमारे यहाँ अनेक भाषा है, हमारे यहाँ अनेक जातियां हैं, तो हम, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हम जितनी भी भाषाएं हो सकता है, जितने भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको पता चलेगा। अच्छा तन्मय, तुम बताओ तो, जब ये किशोर कुमार जी या फिर आपका सुनील दत्त जी, ये सब उस राजेश खन्ना जब उस जमाने में फिल्म करते थे, तो कभी हॉलीवुड फिल्म लगता था किसी सिनेमा हॉल में, पिक्चर में? ध्यान से नहीं सर। कभी सुने हो? नहीं अगर बाहर इतना शोर हो रहा है तो तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं सर, शोर तो नहीं हो रहा है उतना। आवाज आ रहा है। इस एग्जाम्पल को समझो। जब हमारे 1960s, 70s, 80s, 90s, मैं ये तीनों नाइट बता रहा हूं, जब सिनेमा होता था तो कभी भी फॉरेन पिक्चर्स यहाँ लगता था? पहले बताओ, नहीं लगता। लेकिन अभी नाउएडेज मार्वल्स बिजनेस कर रहा है, तेलुगु इंडस्ट्रीज दे आर डूइंग बिजनेस विद इंडिया, लॉट ऑफ चाइनीज फिल्म, आवर फिल्म्स आर आल्सो बीन रिलीज्ड इन चाइना। जैसे लाल सिंह चड्ढा हुआ आपका, ये एक और फिल्म हुआ, क्या बोलते हैं उस फिल्म का नाम, आमिर खान का एक फिल्म था वो एलियन वाला। ये सब जो जिसमें आमिर खान एक एलियन का पार्ट किया था, पीके। पीके, ये सब चाइना में रिलीज हुआ। चाइनीज की फिल्म यहाँ रिलीज होता है। हम लोग जैकी चैन की फिल्म देखते हैं, हम लोग ब्रूस ली की फिल्म देखते हैं, हम लोग मार्वल की फिल्म देखते हैं, हम लोग डीसीज की फिल्म देखते हैं। व्हाट डज इट मीन? बिकॉज ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। व्हाई? Because they know that India is only the place, India is only such a big market that we can do business here only. लेकिन यही आप केनिया, नाइजीरिया, सोमालिया, ब्राजील वहां नहीं दिखा सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, हालांकि वहां इंडियन है, लेकिन फिर सिनेमा घरों में आपको इंडियन फिल्म नजर नहीं आएगा, एक दो एक्सेप्शनल होते हुए। इंडिया के साथ अभी गुड रिलेशन अच्छा है, इसकी वजह से एक दो फिल्में शायद चलता है, लेकिन हालांकि वहां नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने कहता हूं ना, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इतना सब कुछ है यहाँ पर, आप कोई सा भी बिजनेस अगर करते हो इंडिया में चल जाएगा। ये जो मैकडोनल्ड्स हुआ, हैमबर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, ये जितने भी फ्राइड आइटम्स है जो पिज्जा हट में हम लोग देखते हैं, दिस ऑल आर नॉट एन इंडियन ट्रेडिशनल फूड, दैट ऑल आर बीइंग फ्रॉम फॉरेन्स। जो कंपनीज यहाँ आया है, यहाँ सेट हुआ है और बिजनेस कर रहा है, आउटलेट खोल दिया है, यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, दे आर डूइंग बिजनेस। सो अच्छा, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कल्चरल डिफरेंसेस क्या है?
Different countries have different languages, traditions, values, consumer preferences. Business must be understand these cultural different. अच्छा, cultural differences एक बहुत बड़ी चीज है। क्या है? कि यहाँ का कल्चर, दूसरे कल्चर सब अलग अलग होता है। उनका प्रेफरेंसेस हमारे प्रेफरेंसेस में बहुत दिक्कत है। बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट तरह से पेश करना पड़ता है। मैंने कल सेगमेंटेशन आपको पढ़ाया था ना, यहाँ पर सेगमेंटेशन काम में आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आपको जान के चौंक जाइएगा। ये सब मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ ना, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ, जिसकी वजह से मेरे इजी हो रहा है आपको समझाने में। मैं इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ। मैकडोनल्ड जो है, हम इंडियंस बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं, आप लोग जानते हो ना। वी नो, हम लोग सबसे ज्यादा मिर्चा खाते हैं। We used to consume more and more green chilies as compared to any other country. ओके, हम लोग इतना कंज्यूम करते हैं ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, क्यूमिन पाउडर्स, ब्लैक पेपर, हम लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो जब भी आप पिज्जा खाने के लिए जाइएगा ना, आपको देखिएगा ये सब अलग अलग छोटे छोटे पैकेट में आपको दे दिया जाएगा। ऊपर से आप स्प्रेड करके आप अपने हिसाब से खाइए। पिज्जा खाए हो ना घर में कभी? घर पिज्जा खाए हो तन्मय? यस सर। हाँ, कभी नहीं खाया? हाँ सर, हाँ। आए हो ना, तो पिज्जा जब खाते हो, जब भी आप ऑर्डर करते हो, उस पैकेट के अंदर में बहुत सारा छोटे छोटे पैकेट्स रहेंगे, जिसमें ब्लैक पेपर, कुछ स्पाइसेस, कुछ चिली फ्लेक्स, कुछ और ओरिगेनोज, ये सब आपको छोटे छोटे पैकेट में दिया रहेगा। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू योर बड्स, यू कैन ऐड इट। आप अपने हिसाब से ऐड करके खाते रहिए। ये कल्चर, ये ट्रेडिशंस जो था, ये एक्चुअली फॉरेन कल्चर में था। ठीक है, वहां के कंपनी जब यहाँ पर आया, उनको पता चला कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ स्पाइसेस खाता है, बहुत ज्यादा स्पाइसेस से लोग खाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं, जिसकी वजह से ये जो नए नए टेस्ट, नया नया सब कुछ इंडिया में इंसेप्शन किया गया है। लेकिन यही पिज्जा आप उठा के लेके अमेरिका चले जाइए, या कोई भी ऐसे दूसरे देश में चले जाइए, वहां पसंद नहीं करेंगे, कि वो उनको स्पाइसेस ज्यादा खाना पसंद नहीं है। दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड ऑल। दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड ऑल। स्वीट का मतलब स्वीट डिशेस नहीं, वो लोग थोड़ा स्वीटिश खाना पसंद करते हैं, स्वीट, थोड़ा स्वीट रिलेटेड खाना पसंद करते हैं। ये डिफरेंसेस है, ये कल्चरल डिफरेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू द कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग होता है। हमारे, अगर हमारे इंडिया में पिज्जा खाना है तो मसालेदार होना चाहिए। वही अगर आप बाहर जाके क्या किया, बाहर देश में जाओ, वहां सादा मटा रहेगा, एकदम सादा सफेद, कोई उसमें आडंबर नहीं। भर के चीज दीजिए, भर के टॉपिंग्स दीजिए, लेकिन मसाला बिल्कुल मत दीजिए। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ एनी स्पाइसेस हमारे। ओके, तो किसी भी अमेरिकन को देखिए, ऑस्ट्रेलियंस को देखिए, जब वो इंडियन फूड टेस्ट करते हैं ना, तो वो खा नहीं पाते, पानी लेके पीते, पानी बैठ जाते लेके। अरे बाप रे, सो स्पाइसेस, आप लोग कैसे खा लेते हो यार स्पाइसेस। दिस इज द कल्चरल डिफरेंसेस। देखो यही एग्जाम्पल दिया है। मैकडोनल्ड सेल वेजिटेरियन बर्गर्स इन इंडिया, बट बीफ बर्गर इन यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे इंडियन में बर्गर जो है, मैकडोनल्ड जो है, फॉरेन कंपनीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडियन कस्टमर, दे ओनली सर्व चिकन बर्गर, vegetable burger, cheese burger, paneer burger, lot of something like that stuff. But same this McDonald burger, when they sell to United Kingdom or to any other countries, they have another option, that is beef burger या pork burger, ये सब रहेगा। ठीक है, तो बिजनेस जो होता है, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, इंडियन, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस, वो चेंज होते रहते हैं। आया समझ में यहां तक? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। एग्जाम, अच्छा, ये है सेपरेशंस ऑफ बायर एंड सेलर। व्हाट इज दिस सेपरेशन ऑफ बायर एंड सेलर? इन इंटरनेशनल बिजनेस, buyers and sellers are located in different countries and do not meet directly in most cases. हर एक इंटरनेशनल बिजनेस में बायर है, एक सेलर है, लेकिन
ये दोनों बहुत रेयर केस में मिलते हैं, क्योंकि हर एक काम ओवर द फोन हो जाता है, मिलने की उतनी ख्वाहिश होती नहीं है। बिजनेस, ठीक है, पैसा टाइम में पहुंचा दीजिए, आप सामान पहुंचा दीजिए, बस रिलेशन खत्म। ठीक है, मेजर केसेस में, कुछ रेयर केसेस में कभी कभार मिलते हैं। एग्जाम्पल है, एन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर सेल गारमेंट्स टू बायर इन फ्रांस थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन, है ना। इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन का कोई कपड़ा अगर आप फॉरेन में सेल करना चाहते हो तो वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कर सकते हो, आपको पर्सनली जाके मिलके वो काम करना नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ बायर एंड सेलर। नेक्स्ट है रिक्वायर स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज अनदर important thing. International trade need special documents such as invoice, bills of landing, insurance and customs paper. याद रखना ये सब चीजें, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट, स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हो? इनवॉइस, इंश्योरेंस, लैंडिंग, कस्टम पेपर, बिल ऑफ द गुड्स, बिल ऑफ दैट गुड, इतना सारा चीजें जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, एन एक्सपोर्टर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू दुबई मस्ट प्रिपेयर शिपिंग एंड कस्टम्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन कुछ अपना प्रोडक्ट दुबई में सेंड करना चाह रहा है या सेंड करना चाहता है, उसके लिए सारा कुछ लैंडिंग पेपर्स, कस्टम पेपर, इनवॉइस बिल, टेम्पोररी बिल, गुड्स बिल, टैक्स, ये सारा कुछ बिल्स आपको दिखाना पड़ेगा जब आप दूसरे देश में जाइएगा, तब जाके वो पास साइन होगा, स्टैम्प्ड होगा और उसके बाद आएगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड रिक्वायर स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन। मैम नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग टाइम गैप इन ऑपरेशंस। इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स मोर देन टाइम ड्यू टू शिपिंग, customs clearance and long distance transportation. इंटरनेशनल बिजनेस अगर करना है तो आपको वेरी पेशेंस होना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सामान शिप के माध्यम से पहुंचाया जाता है, शिपिंग में टाइम लगता है। ठीक है, कभी कभी कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन कस्टम क्लियरेंस उसको करना पड़ता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन वो तो अलग है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टाइम इन ऑपरेशंस। जैसे गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूएसए मे टेक सेवरल वीक्स टू रीच। इंडिया से यूएसए तक अगर कोई गुड्स हम सेंड कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत दिनों तक वो हमें टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोमोट ग्लोबल बिजनेस रिलेशन। नेक्स्ट है ग्लोबल बिजनेस रिलेशन को प्रमोट करना। इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेशंस अमॉन्ग कंट्रीज। एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है इस चीज को। इंटरनेशनल बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सपोर्ट और इकोनॉमिक रिलेशंस क्रिएट करता है अदर कंट्रीज के साथ। जैसे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ऑपरेशंस बोथ द नेशंस। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना तन्मय, एक बार पढ़ लेना, इजी है ना, हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। क्योंकि सर डेफिनेशन में तो सारा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, बस एक ही डेफिनेशन में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, अलग से कुछ वही समझने का जरूरत नहीं है सर। नहीं, वही चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है इलेबोरेटली विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स अगर आपके जहन में रहेगा तो आप कोई भी आंसर प्रेजेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो एग्जांपल्स को याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? पहला देखो वही है, एक्सपेंड मार्केट साइज, इंक्रीज प्रॉफिट,
provide foreign exchange, create employment, improve quality of food products, promote economic development. ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। आपका मार्केट साइज एक्सपैंड हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एक्सपैंड हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जबरदस्त, और लास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड। What are the objectives of international business? Objectives क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का? पहला, to earn profit, दूसरा, to expand business globally, तीसरा, to use international resources, चौथा, to increase market share, पांचवा, to reduce production cost, और लास्ट, to gain competitive advantage। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग है तन्मय, दोनों को एक साथ मत कर देना। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या इसका गुरुत्व है, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या इसकी खूबियां है। तो खूबियां में गुरुत्व मत लिख देना और गुरुत्व में खूबियां मत लिख देना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या है? पहला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दूसरा, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का मतलब एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट वेंचर्स। ज्वाइंट वेंचर्स का मतलब एक दूसरे से मिलके, दोनों पार्टी मिलके, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल सप्लाई चेन। दिस आर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कोई डाउट है? नहीं सर। नाउ द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस विद एग्जांपल। पहला है इंपोर्ट ट्रेड। पता है आपको, इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से हम कुछ खरीद के लेके आते हैं, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्ट ए क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज सऊदी अरब, ईरान और मेनी अदर कंट्री, एनी अदर कंट्रीज, रशिया। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्रीज टू गेट द सर्विसेज and help the country to earn more foreign exchange, that is called export trade। ठीक है, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस एंड टेक्सटाइल टू मेनी कंट्रीज। दूसरा, मैम नेक्स्ट स्लाइड। एक और होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है importing goods from one country and then exporting the goods to another country without major changes. It is called a re-export. This is called re-export। जैसे सिंगापुर, देखो यहाँ एग्जाम्पल, import electronic goods and re-export them to Asian countries। सिंगापुर एंट्री पोर्ट ट्रेड करता है। एंट्री पोर्ट ट्रेड ना तन्मय बहुत फायदेमंद होता है। आपके डॉक पे सामान उतरेगा, वहीं से आप जिस जिसको चाहे वहां भेज दीजिएगा। फायदा, आपके डॉक में उतरा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो सरकार या जो कंट्रीज आपके डॉक पे सामान इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, आप उससे पैसा लीजिए। उसके बाद मतलब बोलते हैं ना, दोनों उंगली घी पे, ये सिंगापुर वाला ऐसा ही करते हैं। दूसरी बार आप वही सामान री एक्सपोर्ट कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, वहां से भी आपको डबल पैसा मिला, यहां से भी आपको पैसा। दैट इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। दूसरा है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक कंट्री से या एक कंपनी से दूसरे कंपनी का बीच में जो एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। ये क्या करता है?
It's allow its brand, patent and technology for a fee. लाइसेंस क्या करता है, अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का लाइसेंस है, मतलब आप एग्रीमेंट तैयार किए हो कि मेरा ये जो माल है मैं इनको बेच सकता हूं और जो पैसा मुझे मिलेगा मैं सरकार को टैक्स दूंगा. दिस पर्टिकुलर फीचर्स इज कॉल्ड लाइसेंसिंग. कैसे माइक्रोसॉफ्ट गिव सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टू कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज. जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा लाइसेंसिंग कंपनी है, उनकी इजाजत के बगैर आप कोई भी उनका चीज ओपन नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपको जब परमिट दिया जाएगा, एग्रीमेंट दिया जाएगा, तब आप ओपन कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइसेंसिंग. तो लाइसेंसिंग क्या होता है, एक सिंपल एक एग्रीमेंट होता है between one party to another party, between one country to another country, just to allow the foreign or any other country to use its brand, patent or technology for a fee. जैसे दुलाल ताल मछली नाम सुने हो, पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है बच्चों के लिए. उन्होंने अपना उस दुलाल ताल मछली को ट्रेडमार्क दिया है, लाइसेंसिंग करवाया है. और इसका मतलब कोई दूसरा उनके इजाजत के बगैर वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसे कहते हैं पेटेंट करवा देना. लाइसेंस पेटेंट कुछ हद तक सेम है. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट मैम, पांचवा है फ्रेंचाइजिंग. पांचवा है फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग क्या है? फ्रेंचाइजिंग एक बिजनेस एग्रीमेंट है where a company allows another business to use its brand name and business model in another country. जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया फूड प्रोडक्ट दुलाल तालवी का. ये क्या है? दिस इज एन फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या है? यू कैन यूज योर द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट for your promotion, for your advertisement, for to create your own brand or to create its brand in different countries. This is called franchising. ये एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू कंपनी, जहां एक कंपनी दूसरे बिजनेस या दूसरी कंपनी को अलाउ करता है कि आप मेरा नाम इस्तेमाल कीजिए और अपना ब्रांड सेटअप कीजिए. ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड ऑपरेट्स इन इंडिया थ्रू फ्रेंचाइजी आउटलेट. नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. व्हाट इज FDI? FDI means a company invest directly in business operations in another country by opening office, factories or subsidiaries. Example, Toyota set up manufacturing plants in India. That is called foreign direct investment, FDI. तो FDI का फुल फॉर्म होता है a company who invest directly in business operations from another country, in another country by opening offices, factories और subsidiaries. हमारे इंडिया में बहुत सारा फॉरेन कंपनीज है, यहाँ आउटलेट खोल के बैठा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. एक होता है जॉइंट वेंचर. इंटरनेशनल बिजनेस का एक और टाइप होता है जॉइंट वेंचर. जैसे इसका मतलब होता है बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनीज. जॉइंट वेंचर का मतलब होता है दोनों काम करके, दोनों मिलके काम करना. इट इज अ बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज जहां पर प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है. जैसे सोनी एंड एरिक्सन फॉर्म्ड सोनी इरेक्सन एज जॉइंट वेंचर. एक और एग्जांपल, हीरो एंड होंडा मेक ए जॉइंट वेंचर बिजनेस. हीरो एक इंडियन कंपनी है, होंडा एक जापान कंपनी है. दोनों मिलके
बिजनेस किया, यहाँ नहीं अपने देश में भी किया, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। हीरो होंडा अभी भी है, हीरो होंडा चल रहा है, नहीं होंडा भी हट गया है, अभी हीरो है। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग a company hire a foreign company to produce goods on his behalf। अब कोई भी एक कंट्री है जो अक्षम है, सक्षम नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो हायर करते हैं, दूसरे कंट्री से लेबर हायर करके लाते हैं, वर्कर्स हायर करके लाते हैं, या फिर इंजीनियर्स हायर करके लाते हैं और अपने देश में उस प्रोडक्ट का काम करवाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे एडिडास हुआ, नाइक हुआ, मेनी अदर प्रोडक्ट्स हुआ जो मैन्युफैक्चर करते हैं एशियन कंट्रीज में, हालांकि इनका जो मेन ऑफिस है वो बाहर है, अमेरिका में है, लेकिन एशियन कंट्रीज में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। हो गया, समझ में आया ज्वाइंट वेंचर क्या है, हाँ सर। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कोई डाउट है तो बोल सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई ऐसा कोई डाउट डाउट तो नहीं है, नहीं। कोई कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है? नहीं सर, फिलहाल नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। व्हाट इज टर्नकी प्रोजेक्ट्स? टर्नकी प्रोजेक्ट्स ये इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट होता है जहां पर एक कंपनी डिजाइन करता है, तैयार करता है और दूसरे कंपनी को हैंड ओवर कर देता है। जैसे इंडियन कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज हैंडल करता है। दिस इज कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट्स। ये सब टर्न याद रखना, टर्न की प्रोजेक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब याद रखना मुंह जुबानी। टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है? ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट होता है जहां एक कंपनी डिजाइन करता है, बिल्ड करता है और दूसरे कंपनीज में, दूसरे कंट्रीज के दूसरे कंपनीज को डायरेक्टली सेल कर देते हैं, डायरेक्टली सेल इट, और वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, एमएनसी। एमएनसी तो नाम बहुत सुना होगा तुमने, यू हैव लिसन मोर ऑन नेम्स ऑन एमएनसी। तो यस। मल्टीनेशनल कोऑपरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी एक कंपनी होता है that operate in many countries through different branches, subsidiary branches for or production unit, that is called multinational companies or multinational company corporate। जैसे आपका एयरटेल, जियो, these all are multinational companies। It means it has its branch, head office in some other countries, but it has its subsidiary businesses, it has its subsidiary business, or it has subsidiary what you can say operations, many prime locations outside the world। Airtel का head office, actually Airtel is not an Indian company, it's a foreign company, it has its head office in UK, but it has this subsidiary branch all over India, all over South Asian countries। इस तरह का बिजनेस को कहते हैं मल्टीनेशनल कोऑपरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी। और नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज क्या है, करने से क्या एडवांटेज है? पहले भी बता चुका हूं, सेम है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आएगा। तीसरा है, आप एक खुद का ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाएगा। चौथा है, रिसोर्सेस आपको बेटर मिलेगा। और लास्ट है, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, दैट इज डिफरेंट थिंग। दीज आर डूइंग एडवांटेज ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। और मैम अब डिसएडवांटेज क्या है? नेक्स्ट, हाई रिस्क, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, हाई रिस्क फैक्टर है। कॉम्प्लेक्स लीगल रूल्स, कुछ कुछ कंट्रीज में जो लीगल रूल्स होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है।
वापस सामान कभी कभी आ जाता है। एक है कल्चरल बैरियर्स, कुछ कुछ कल्चरल बैरियर्स है जिसकी वजह से कुछ सामान हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है करेंसी फ्लक्चुएशंस, कभी कभी ऊपर नीचे पैसा हो जाता है, शेयर ऊपर नीचे हो जाता है, ट्रेड ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट होना पड़ता है। चौथा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी एक दूसरे में मारपीट, पाकिस्तान में जैसे अभी एकदम मारपीटाई चल रहा है, कोई एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में, क्यों? पता है कि कुछ भी करने के लिए जाएंगे दूसरे देश जहाज मार के बम मार के उड़ा देगा, क्या जरूरत है लोगों से पंगा लेने के लिए, मरने दो। ओके, तो यहाँ पर इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि कोई भी बिजनेस आके यहाँ टिकता नहीं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, समटाइम देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम which is one of the most major and important problem nowadays. Okay, if any person cannot communicate properly, then how can he place the order of their business? So it's a very important thing nowadays that whenever any country doing a business with other country, they must check either they have any communication problem or not. If has, then they have to keep the guide. एक लोकल गाइड आपको हायर करना पड़ेगा जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जैसे चाइना जब इंडिया आता है या इंडिया जब जापान जाता है तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को पूरा जापानीज आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ट्रांसलेटर को रखा जाता है जो दोनों काम करता है। वॉट एवर दैट पर्टिकुलर पर्सन प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग, that particular translator translating the same thing to our prime minister, and when prime minister trying to say something, then he translate and give back to the next foreign minister, international president. This is the most disadvantage of doing international business. Okay, आज यहीं रहने देते हैं भाई, ठीक है, कल फिर पढ़ाऊंगा। ओके सर, ठीक है।